moksha, which is the ultimate union, unification with Almighty God or the supreme power. But at the same time, how can that be done? It can be done by, first of all, clarifying, cleansing ourselves, cleansing our thoughts. They say that a healthy soul resides in healthy body. So first of all, it is a combination, it's a union of healthy body and mind. Only then the third unification happens, and that is of the soul. And other thing is, yoga, it has been collected or gathered in the form of sutras by Patanjali. And from there only we identify yoga with Patanjali. He has written a treatise on yoga called as Patanjali Yoga Pradeep. Again, that how this enlightenment, which has come from our rishis, they were so scientific that they could envision in advance what's going to happen in future and what are the things that we need to do. And yoga is such a wonderful tool of unification. Sadhguru Jaggi Vasudev, I'm a great fan of him. He started Isha Foundation. Somewhere he was talking, and it was he who was the key speaker on the first International Yoga Day, which was organized by United Nations. He was the speaker, and there also he said that if you give me 500 minds from all over the world, and those are kept all together, and they do yoga, there won't be any problem in the world. Because if your chitta, if you yourself are shant, we always talk about peace. You know, our Vedas, our mantras, we have Shanti mantra, Om Shanti Shanti Shanti. What's the need of peace? The need of peace is that when your mind is at rest, when your body is at rest, when your soul is at rest means there are no provocative thoughts. There is no passion. Passion is something materialistic. Whole of the world is after materialism. We want to achieve. We are into a blind competition. And because of that blind competition, what is happening? There is more jealousy. Those panch vikaras, 5 elements that are totally derailing us, they come into us. And those are Kama, Krodha, Moha, Lobha, Evam, Ahankar. So pride, jealousy, attachment with the things. We are so much attached with the things that we do not have that kind of attachment or love for, the supreme thing. We want more and more and more. And the desires are never ending. For example, we give, what is China doing at this time? It is fulfilling its material desires. And those are infinite. Those cannot be stopped at all. Same is with every human being. If we go after gathering whatever is material and not knowing what is going to happen with my life for how much time I am on this earth, then what's the fun of living? I just give you one anecdote. Guru Nanak Dev Ji goes to one place, and there comes a rich man and says that, okay, Guru Nanak Dev Ji, I respect you a lot. You come to my house.
Guru Nanak Dev Ji says that I know you are rich and you can provide me with every comfort and luxury, but I won't come at this time. I will come when your time comes. And that time was when he was about to die. He says that I have a task for you. He was going to die. He said, I have a task for you. He says, okay, I'm on the deathbed. Even then, you please tell me, because you are a guru, you please tell me what should I do. He says, I give you this needle. This needle you have to take with you, and I will take this needle from you in the next world. He said, I'm sorry, this is not possible. I cannot take even a little particle. He says, okay, then you ask your wife. He says, even she cannot. Your children, your grandchildren, nobody can. Can anybody take anything? Not at all. So this whole materialism or this materialistic instincts, these are the reason for all kind of disturbance in our life. And that's why yoga is the need of the hour. It's for physical fitness also, but at the same time, it is for the mental and the spiritual fitness also. That's why if we go by the yoga sutras, it talks about discipline. There is the first sutra says Atha Yoga Anushasanam. It's given in the Patanjali Yoga Pradeep. When you do yoga, you can do with Anushasan, with discipline only. You have to discipline your body. Like the second sutra goes Yogascha Chitta Vritti Nirodhaka. Yoga takes away all your chitta vrittis. It's all your wrong passions which are lying there, or whatever the desires that's a mind is going into, because it makes the mind to concentrate on one point. You can make use of your buddhi, wisdom. The more you attain that siddhi of yoga, you will be more concentrated. You will be more productive, and you will not create a violence anywhere. You will be at peace, at heart, at soul. And that's why it's a need of the hour. The nation felt its need, the United Nations felt the need of it, and when this proposal went from the Prime Minister of India, it was endorsed and sponsored for the first time by more than 190 plus countries. And in those even, there were many Islamic countries. So it does not have anything to do with even religion. If somebody says that yoga is related to religion, I'm sorry, not at all. It believes in union. And that union, first of all, is of the body, mind and soul. And from there to the oversoul, to Param Paramatma or Khuda or Ishwar or Parameshwar. So this is all a kind of background that I am giving, that why there is need of adopting yoga into life. Three things. I am also a great fan of Khurshid Batliwala. He is the disciple of Swami Ravi Shankar, and he says that three things are needed. If anybody wants success in life, three things are needed. One is proper sleep. You need to sleep properly for at least 7 to 8 hours every day. Number two, exercise. Because when you give exercise to your body, instead of getting tired, you will be more strengthened. Maybe by doing exercise, you get tired. कौन करेगा? दर्दें होती हैं उससे. लेकिन when you make it a habit, for example, Robin Sharma also talks of 5 a.m. Club is a very good book written by Robin Sharma, and there he says that those people who get early in the morning, हमारे तो यहाँ
कल्चर में, संस्कृति में है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है. And now he started, he is a best seller in America. बट वही योगिक प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा मोल्ड करके एक नई चाशनी से निकाल के वही जलेबी हमको दी जा रही है. इसे 5 AM क्लब मीन्स के ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले. और ब्रह्म मुहूर्त क्या है? बिफोर द सनराइज जो 1 या 2 आवर्स का जो टाइम स्लॉट है, उसमें उस समय अमृत बरसता है. आपका अगर आज की डेट में देखें, देयर इज नो पॉल्यूशन एट ऑल एट दैट टाइम. पॉल्यूशन सेटल हो चुका होता है. देयर इज फ्रेश ब्रीज ब्लोइंग and you can listen to the beautiful chirping of the birds in the morning. वो हमसे जल्दी जाग जाते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं. And third thing that Khurshid Batliwala he refers to is meditation. Why meditation? ये एक फॉक्स पास है कि नहीं जी, उम्र के साथ दिमाग कम हो जाता है. हाँ जी, दिमाग के सेल वीक हो गए. इट्स नॉट सो. न्यू न्यूरॉन्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू डू मेडिटेशन एंड यू विल बी मोर एक्टिव, मोर प्रोडक्टिव. यू विल बिकम मोर वाइजर देन बिफोर. इफ यू गो फॉर योगा आसनास, प्राणायाम and ultimately to meditation. Now from the yoga point of view, we divide it, rather there is no division, there is no technical division in between yoga. Yoga is one, but there is bahiranga yoga and antaranga yoga. Means something that you are doing with your body, that is bahiranga. For example, there are 5 things that we do: asan, yam, niyam, asan, प्राणायाम, प्रत्याहार. सबसे पहले अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इस एक बात के लिए तैयार करना कि हम ये करेंगे. तो वो एक फोकस पे लाना यम है. नियम है टू पुट बॉडी एंड माइंड इनटू डिसिप्लिन. और जब डिसिप्लिन में आप आ गए तो तीसरी चीज आती है आसन. और आसन क्या है? उसके लिए भी पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, पोस्चर. और पोस्चर क्या है? जिसमें आप स्थिरता से बैठें, कोई तकलीफ ना हो बैठने में, आपको सुख का अनुभव हो. हम जिम में जाएं, वहां पे जाके डंबल मारें या मशीन्स को पकड़ के हम बड़ा तनाव अपने में लेते हैं. मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भी एक टायरिंग से हम फिर रिवाइव करते हैं, मसल बिल्डिंग होती है वगैरह. लेकिन एक आम इंसान कहाँ पे उसको इतना ये है कि मैं बॉडी बिल्डर ही बनूं. और सब लोग बॉडी बिल्डर नहीं बनेंगे या बनना चाहेंगे, कुछ ब्रेन बिल्डर भी बनना चाहेंगे. अब सब लोग ही स्पिरिटेड नहीं होते, कुछ लोग ब्रेन से ज्यादा काम कर रहे हैं. तो मेरे जैसे पतले लोग तो तब जिम को देखते ही कहेंगे भाई अब हमारी बॉडी कब बनने से रही. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that we understand that we need to discipline and then only we can do yoga. So आता योग अनुशासनम. योग के लिए खुद को अनुशासन में डालना पड़ेगा. अनुशासन क्या है? सुबह उठना. अनुशासन क्या है? अपने शरीर को साफ करना, जिसमें नेति, धोती, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ. योग कब करना है? पेट भरा हुआ है तब योग नहीं करना है. आसन नहीं करने हैं, खाली पेट होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए. तो वो जब हम आंतरिक शोधन करते हैं, शरीर का शोधन करते हैं, उसके बाद आ जाता है आसन. और आसन में जैसे जैसे स्थिरता आ जाती है तो हम अपने प्राणों के ऊपर, द ब्रीदिंग प्रोसेस, उसमें आ जाते हैं. वो हो गया, जैसे मैंने कहा था, यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम. तो प्राणायाम जैसे बहुत सारे प्राणायाम हैं. उसकी बात जब हम फिजिकल उसके पार्ट में जाएंगे, हठ योग में जाएंगे, नरेंद्र जी ने मुझे कहा हुआ है कि उसके ऊपर आई विल बी
giving you a video also of the yogic asanas and kriyas, वो separately होएगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं। तो प्राणायाम में प्रमुख जैसे अनुलोम विलोम, आप ये स्वामी रामदेव जी को देखते रहते हैं, वो बताते हैं। तो हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि आसन भी आप सिर्फ देख लिए वैसा ना करें, उसके लिए किसी इंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है, प्रॉपर किसी आसन को जानना जरूरी है। कौन लोग हैं जो उसको कर सकते हैं, राइट? लाइक किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी है या हाई बीपी है, तो इस प्रकार हम अच्छे से जान ले पहले कि कौन से आसन कौन लोग कर सकते हैं। जैसे हाई बीपी के लोग ऐसे आसनों में ना जाएं जहां पे ज्यादा स्ट्रेस है, जहां पे नाड़ियों पे, स्नायु तंत्र पे ज्यादा खिंचाव है। तो ये बात पहले ही हमें पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सीधे आसन करना या क्रियाएं करना शुरू हो जाए और बीपी बढ़ जाए, और वैसा भी कोई आसन ना कर लें कि कहाँ पे कर रहे हैं, ये भी स्थान भी उसका जरूरी है, किस स्थान पे किया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड जगह में वो कर रहे हैं जहां पे ताजा हवा भी नहीं है, तो ये ना हो कि चोकिंग हो जाए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एट विच प्लेस इट इज डन, कौन से आसन हम कर रहे हैं, दैट आल्सो। और फिर इसमें प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, जितना हम ये करते जाएंगे उतना करने के बाद ही अनुभव करेंगे कि हमें क्या चेंजेस आ रही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा कि कभी कभी मुझसे छूट भी जाता है, कभी कहीं बाहर हैं तो तब भी हम नहीं कर पाते। तो इसलिए एक अनुशासन बनाना और उसके साथ ही ये हमारी लाइफ को प्रोडक्टिव बना देगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मुझे लगता है कि समय की भी पाबंदी है, मुझे हमारे मित्र ने इशारा दे दिया है, तो उस कारण मैं अपनी बात को यहाँ पे ही रोकूंगा ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस भी लिए जाएं। एंड एट द सेम टाइम मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि योग को अपने जीवन में ढालें, अपने आप को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, अपने घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और फिर विश्व शांति के लिए हम सब लोग एक होके काम करें, क्योंकि जो जो योग करेगा वो एक दूसरे के साथ जुड़ता भी जाएगा। सो दैट वे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम योग को अपने जीवन में जरूर ढालें। सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ना करें, हर दिन करें, नियम बना ले अपने जीवन का, एंड दिस विल बी वेरी प्रोडक्टिव टू ऑल ऑफ अस। इसके साथ ही मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जी नरेंद्र जी। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा मतलब हमें सीखने को मिला। और मैं जगजीत जी का भी वेलकम करता हूँ, हमारे साथी जगजीत जी भी अभी प्रोफेसर जगजीत, उन्होंने हमारी ज्वाइन किया अभी। तो बच्चा लोग, आपने अगर किसी ने क्वेश्चन कोई पूछना है तो रेज योर हैंड्स, चैट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन भी ले सकते हो और अपना हैंड रेज भी कर सकते हो, सो दैट मैं आपको अनम्यूट करूं ताकि आप क्वेश्चन पूछ सको। एनी स्टूडेंट? जगजीत जी आप अनम्यूट कीजिए, मैंने इधर से किया आपको सर। सबसे पहले पंकज जी नमस्कार। थैंक यू नरेंद्र सर। अभी मेरे को आते हुए थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी। मेरा प्रश्न ये है कि योग करने का सबसे उत्तम समय क्या होता है? हमें मॉर्निंग, दोपहर या इवनिंग में या रात को, कौन सा समय सबसे उत्तम रहता है योग करने के लिए? और कुछ और खास नियम जो योग करते समय करने चाहिए? हाँ जी। इसके लिए मैं ऐसा कहूं कि जहां तक आसनों की बात है, तो आसनों के लिए
आप समय अगर थोड़ा सा, जिस तरीके से हम एक आज के आधुनिक दौर में रह रहे हैं, पता क्या आप, नहीं 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 म्यूट नहीं, सुनाई तो आपको देगा मैडम सब कुछ। जी मैं बात करूं? जी हेलो। जी 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 प्लीज प्लीज। हाँ जी जी प्लीज करिए। हाँ जगजीत जी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम निर्धारित है, वैसा तो इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, जो पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिल सकता है, वो सूर्योदय से पहले का है। सूर्योदय के साथ हम सूर्य नमस्कार जी करें तो ठीक है। बड़ा प्रभाव आ जाता है, इट्स वेरी इफेक्टिव। लेकिन अपने एक मॉडर्न रूटीन को देखते हुए, आधुनिक दौर में देखते हुए, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी और नहीं कर सकते। हाँ, जब हम योग आसन करें तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। भोजन लिए हुए जी या कुछ भी जी खाए हुए होने के बाद हम योग आसन ना करें। जहां तक प्राणायाम जी की सर बात, जी प्राणायाम हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, जी लेकिन एक जी सर बात जी सबसे ज्यादा जरूरी है, वह ये है कि योग में जी हम केवल योग ही ना करें और साथ में हमारे कोई हेडफोन या कुछ ऐसा म्यूजिक वो लगा हो, बजाय इसके हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहे। इसलिए योग के वक्त केवल योग ही करें, और कुछ ना करें, कोई म्यूजिक नहीं या कुछ और नहीं, जी क्योंकि हमें सिर्फ अपने शरीर पे ही कंसंट्रेट नहीं करना है, हमें जुड़ना है हर एक उस सत्ता से। अगर परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर से जुड़े, अगर ऐसा एग्नोस्टिक है, भगवान को नहीं मानते, तो इस यूनिवर्स से जुड़े। जैसे स्टीफन हॉकिंग कहते हैं दैट वी आर एन इम्पोर्टेंट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स इज us and we are within this universe। पंकज जी अगला क्वेश्चन ले, जी अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? जी जी नरेंद्र जी। हाँ जी, ये शिवम पाल, शिवम पाल बच्चा आप म्यूट, अपना अनम्यूट करो, आप पूछिए क्वेश्चन। शिवम पाल, शिवम पाल क्वेश्चन पूछो बच्चा। नरेंद्र जी आप ही पढ़ लें इनका क्वेश्चन, नहीं तो। नहीं, इन्होंने हैंड रेज की है। ओके। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो बच्चा, शिवपाल बोलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने पहले ही हमें मेरा क्वेश्चन था, जगदीश सर ने आपको पहले ही एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मेरा प्रश्न पहले यही था कि क्या हमें खाली पेट करना चाहिए या हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो आपने जगदीश सर को इसका रिप्लाई दे दिया। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि योग के समय में योग के समय में क्या हमें ये निर्धारित है कि म्यूजिक के टाइम पे, या जैसे आपने कहा कंसंट्रेशन आपकी वहीं पर होनी चाहिए। आज का जो यूथ है वो तो यही है कि अपना म्यूजिक इंटरेस्ट वहां शो नहीं कर पाता, तो वो म्यूजिक वहां पर लगाता है। तो इधर यानी देखिए शिव, अगर आप योग कर रहे हैं तो योगिक क्रियाओं में अपना पूरा ध्यान होना जरूरी है। उसमें मन, शरीर, आत्मा, कर्म, हर चीज जुड़ी हुई होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि पतंजलि भी जब योग के सूत्र निर्धारित करते हैं, वह कहते हैं कि अथ योग अनुशासनम, योग एक अनुशासन है। ऐसे तो वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, ये कर लें वो कर लें, वैसा है, वो एक बात आ गई। लेकिन अगर हम सूत्र के अनुसार चलें, और वैसा है कि पर्सनली भी मैंने ऐसा फील किया है शिवम, कि जब आप पूरे कंसंट्रेशन से बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ मिला के योग करेंगे, उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। जरूरी है कि हम
अपने साथ होके। सिर्फ योग इसलिए नहीं है कि इट्स एन एक्सरसाइज, इट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। उस समय अपनी किसी भी तरीके के थॉट हमारे मन में ना आए, उन थॉट्स का ही तो निषेध करना है, अवरोध करना है। इसलिए ये कहने के बाद योग अनुशासन वो कहते हैं कि आपको अपने मन में स्थिरता लानी है। और ये देखिए, जैसे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, तो पहला सूत्र योग का ये कहता है कि जब सब कुछ आप करके देख लो, उसका प्रभाव नहीं हो, हाँ जी, आर्य क्या नाम है इसका, आर्य महाजन। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछो। हेलो जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं और जो हमारी योगा होती है, वो करने में तो दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन बेसिकली इनके बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस होता है? तो आसन में हमारा ध्यान उसमें स्थिरता लाने में है। देखिए, जैसे मैं एक्सरसाइज की बात करूं, कोई स्ट्रेच कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उसमें बड़ी ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, है ऐसा कि नहीं? आर्य जी सर। हेलो आर्य, म्यूट है आपका। इसका आर्य, तो उसमें हम शक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जहां तक योग आसनों की बात है, उसमें स्थिरता आए और सुख की अनुभूति हो। ये बिल्कुल वैसा है कि इट्स अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस। बॉडी में सप्पलनेस ज्यादा आए, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आए। एक्सरसाइज बेशक एक ज्यादा तेज माध्यम है अपनी बॉडी के लिए अचीव करने में, लेकिन आसन जो है वो इसलिए थोड़ा अलग है कि उसमें ज्यादा जोर है स्थिरता पे। और दूसरा ये था कि आसन के बाद आप प्राणायाम पे जाएंगे। कई बार तो आप आसन और प्राणायाम को इकट्ठा भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार करते हुए ये नहीं कि आप जल्दी से कोई भी आसन और जो है वो कर लें, बजाय इसके उसमें स्थिरता पे ध्यान कि आप उसको प्रॉपर करें। ब्रीदिंग पे ध्यान कि किस तरीके से ब्रीद करते हुए, जो भी उसमें अलग अलग आसन है, कैसे ब्रीदिंग भी उसमें इन्वॉल्व करें, जिससे उसके फार टाइम ज्यादा बेनिफिट हो। आपने देखा होगा कि जो हमारे योगी हैं, 100 150 साल उनकी उम्र हो गई। अब ऐसा क्या हो गया, लाइफ स्पैन हैज डिक्रीज। पंकज जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम वोट ऑफ थैंक्स से खत्म हो, तो इसलिए अभी हमारे पास समय का अभाव है। तो मैं सरबजीत मैडम को इनवाइट करूंगा, प्रोफेसर सरबजीत मैडम को, कि आप वोट ऑफ थैंक्स करें प्लीज। सरबजीत मैडम प्लीज। मैडम सरबजीत मैडम, हेलो। आई थिंक मैडम हेलो। मुझे लगता है उनकी आवाज, हाँ, मैडम की शायद आवाज नहीं आ रही। तो चलो हम जगदीश जी को कहते हैं। जगदीश जी, आपने वोट ऑफ थैंक्स करें पंकज जी का। आप अनम्यूट करें जगदीश जी अपने आप को। हाँ, अरे आवाज नहीं आ रही। आगे मैडम। मैडम आवाज आ रही है? शुक्रिया नरेंद्र सर। मैडम आवाज आ रही है? कोई बात नहीं मैडम वोट ऑफ थैंक्स। I can't hear anybody. मैडम आवाज नहीं आ रही अपना। मैडम माइक ऑन करो अपना। मैडम प्लीज आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। माइक नहीं ऑन हो रहा मेरे ख्याल से मैडम।